તેને સાબરમતીમાં સમાવું ન હતું. તેણે એક સુંદર પરિવારની કલ્પના કરી હતી. તેને મન તો તેનો પતિ જ સર્વસ્વ હતો. મનમાં અનેક અરમાનો હતા, અનેક ઈચ્છાઓ હતી. પતિને અત્યંત પ્રેમ કરતી હતી, પરંતુ આ મહિલાની લાગણીને પતિ રોજ ઠોકરે ચડાવતો. પતિને મન તેની કોઈ કિંમત જ નહોતી અને પતિનો પ્રેમ પામવાની આશામાં આ બધું સહન કરતા કરતા એક દિવસ તેનું મન એટલું રડ્યું કે તેણે હસતા હસતા મોત સ્વીકારી લીધું. હા, તેનું નામ આયશા હતું. એ જ આયશા કે મરતા મરતા પણ તેના દિલમાં પતિ માટે દુઆ હતી. પતિનો પ્રેમ ન પામી શક્યાનું દુઃખ હતું. એક પરિવાર બની ન શક્યાનો વસવસો હતો. મહિલાઓને અધિકાર અને આરક્ષણની મોટા અવાજો સાથેની માંગ વચ્ચે આયશાનો અવાજ દબાઈ ગયો. આયશાએ કોઈ ખાસ અધિકાર નહોતા માંગ્યા, તેણે તો એટલું જ માંગ્યું જે એક સ્ત્રી ઝંખતી હોય છે. સ્ત્રી સમાનતા, મહિલા અધિકાર અને સશક્તિકરણ કે પછી મહિલાઓને 50% અનામતની માંગ સાથે આયશાને કઈ જ મતલબ નહોતો. તેને મતલબ હતો કે તેનો પતિ તેને પ્રેમને સમજે, તેને અપનાવે. બસ અધૂરી ઈચ્છાઓ અને અરમાનો, તણાઈ ગયેલી લાગણીઓ અને મહિલા દિન તેને પાછી અપાવી નહીં શકે. अपनी जिंदगी तो यहीं तक है. मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी. उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई. प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे. अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे. चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है. मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी. उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई. माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में. मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ. अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए. एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं. मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी. बस काफ़ी है. थैंक यू. और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले. चलो, अलविदा. या अल्लाह, कभी इंसानों की शकल मत दिखाना. કેટલી વેદના હશે આયશાના મનમાં અને એ વેદનાની સાથે આયશા તણાઈ ગઈ, પરંતુ પાછળ અનેક સવાલ છોડી ગઈ, કારણ કે આવી આયશા તો અનેક છે આપણા દેશમાં. અને એટલા જ માટે આજે આયશાનો પરિવાર આપણી સાથે જોડાયો છે અને તેની જ આ પ્રીતિ આપણે આજે જાણીશું. આપણી સાથે આયશાના પિતા લિયાકતભાઈ અલી જોડાઈ ગયા છે, આયશાના બહેન નસરીત શેખ, આયશાના ભાભી પણ આપણી સાથે જોડાયા છે હસીના ખાન મકરાણી, અને આયશાના ભાઈ આમિર ખાન પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. અને આ સાથે જ આયશાના જે વકીલ છે જાફર ખાન પઠાણ, તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સૌથી પહેલા નસરીત શેખ, આપ આયશાના બહેન છો. આયશાને તમે કઈ રીતે અત્યારે જુઓ છો? કારણ કે અત્યારે તેમણે પોતાની વેદનાની સાથે પાણીમાં છલાંગ લગાવી દીધી, પરંતુ શું તમને લાગે છે કે હવે આયશાને ન્યાય મળશે? હસીના, નસરીતબેન, आपने लागे छे कि आयशा ने क्यारे न्याय मळशे? न्याय तो मिलना चाहिए उसको. आयशा ने તમે તેમના ભાભી છો. આયશા કેવડી હતી જ્યારે તમે ફેમિલીમાં આવ્યા અને કેવી સ્થિતિમાં તે કેવી રમૂજી હતી, અથવા તો એ નાનીથી મોટી થઈ ત્યારથી તેનો સ્વભાવ કેવો હતો, એના વિશે શું કહેશો? मैं तो उससे 2.5 साल से मिली हूँ. मेरी तो शादी उनके साथ ही हुई थी, बट उनकी जैसी लड़की शायद ही कहीं होगी. बहुत फ्रेंडली थी वो, बहुत अच्छी थी. લિયાકત અલી અમારી સાથે જોડાયા છે, જે આયશાના પિતા હતા. એક દીકરી પરિવારમાં જો સૌથી કોઈને વધુ વાલી હોય તો તે એના પિતાને વાલી હોય છે. અને આપને ફોન કરીને જ્યારે એમણે કહ્યું કે પપ્પા હવે કંઈ બચ્યું નથી, હું કંટાળી ગઈ છું અને બસ હવે મારી પાસે એક જ ઓપ્શન છે, એક જ ઉપાય છે કે હવે હું મરી જઈશ, કેવી સ્થિતિ હતી ત્યારે? बहुत दुखद स्थिति थी, बहुत परेशानी की घड़ी थी वो.
मैं चाहते हुए भी उसको नहीं बचा पाया। मेरे बच्चे उनको ढूंढने निकल गए थे, लेकिन उसको पता नहीं आरिफ ने क्या बोला था कि उसने इतनी बड़ी कस्में देने के बाद भी उसने नहीं माना, और उसके दिल में जो ठान लिया था उसने, आरिफ के कहने के मुताबिक उसने वीडियो भेज दिया और उसके बाद मुझसे बात करी है कि पापा मैंने उसको वीडियो भेज दिया कानून से उसको बचाने के लिए, तो मैंने बचाने के लिए उसको वीडियो भेज दिया, उसको व्हाट्सअप कर दिया उसको, और अब मैं नहीं जीऊँगी। तो मैंने सारी कस्में दी उसको जो आपने सुनी हुई है। લિયાકતભાઈ, જ્યારે આયશાએ આપને ફોન કર્યો અને જે પરિસ્થિતિ એ શબ્દ સાંભળતા જ એક બાપની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ જાય, ખૂબ જ દયનીય થઈ જાય કે પપ્પા હવે મારી પાસે કંઈ નથી બચ્યું. પરંતુ લિયાકતભાઈ, આપણા દેશમાં એક આયશા નથી, આવી અનેક આયશા છે કે જે રોજે રોજ મરી રહી છે. ક્યારેક કોઈ પરિવાર તેને સળગાવી રહ્યું છે, તો ક્યારેક કોઈ પતિ એવું કહી રહ્યું છે કે મારે તારી સાથે નથી રહેવું, તું જતી રહે, તું મરી જા. આ તમામ આયશા કે જે આવી જ રીતે રોજે રોજ મરી રહી છે, એમને શું કહેવા માંગશો? આજે મહિલા દિવસ છે અને આજના દિવસે આપે આયશાને ખોઈ છે, બીજી આયશા ન ગુમાવી પડે એટલા માટે શું કહેશો? मैडम ये मैं यही कहना चाहता हूँ, हर साल वुमन डे मनाया जाता है, बड़ी बड़ी डिबेटें की जाती है, बड़े बड़े लोग डिबेट करते हैं, एक दिन में बात खत्म, वुमन डे खत्म. उसके बारे में होता क्या है? कुछ नहीं होता. बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े नेता, सभी लोग वुमन डे वुमन डे. अरे यार वुमन डे में करते क्या हो तुम? मेरी बच्ची आयशा ने खुदकुशी नहीं की है, कुर्बानी दी है, और हर मजहब की बेटी को बचाने की आगाज की है. और मैं सब बड़े लोगों से कहता हूँ, सब जो बड़े बड़े आइन जो चलाते वो चलाते, मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है. मेरी बेटी मर गई है, वो वापस नहीं आएगी. उसके पूरे परिवार क्या, पूरे खानदान को भी फांसी दे दो ना तो भी मेरी आयशा वापस मुझे नहीं मिलेगी. लेकिन अब हर मजहब की बेटी वो मेरी आयशा है, बस उस मजहब की आयशाओं को बचा लो. जब मैंने ये स्टेटमेंट आज तक में दिया था, मेरे घर हिंदू बेटी आई थी, उसके माँ बाप लेके मेरे पास आए कि हमारी बच्ची भी खुदकुशी करना चाहती है, आप इसको समझाओ. तो मैंने उसको बोला बेटा तुम मेरे घर आ गई है. उस वक्त मेरी बीवी सामने से आई, बोले कौन है ये? हम उसको आयशा को प्यार से सोनू बोलते थे. मैंने बोला देख अपनी सोनू आई है. तो उसने उसके सर पे हाथ फिराया, बोला बैठ बेटा. हमने उसको खाना पीना खिलाया. उसके बाद हमने हमारे वकील साहब से उससे मिलाया, उसके केस चालू है, और ऐसे कई लोग आ गए. लेकिन मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके साथ. अगर कुदरत ने मुझे पैसा दिया होता ना, तो किसी भी जहाँ की बेटी को अगर मेरे पास आ जाती तो मैं उसे मरने नहीं देता. अब सब बड़े बड़े लोग वुमन डे पे, अभी मेरी बेटी का हुआ उस पे सभी बड़े बड़े धर्म गुरु, पॉलिटिक्स, मुस्लिम के बड़े धर्म गुरु सब बड़े बड़े डिबेट कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया. और ये पहला मामला नहीं है मैडम, इसके पहले भी निर्भया कांड हुआ, लेकिन ये इंटरनेशनल हो गया. तो पहले भी बहुत लोगों ने बड़े बड़े डिबेट दिए, ये दिए वो दिए, ये निकाला वो निकाला. अरे क्या करते हो यार? कभी तो कुछ लड़ो, कभी तो एक मुकम्मल बन जाओ. हिंदू मुसलमान की एक ऐसी संस्था बनाओ कि हर जहाँ की बेटी जो हिंदू की है, मनीषा वो मेरी आयशा है, मंजीत है वो मेरी आयशा है, मरियम है वो मेरी आयशा है. उस आयशा को बचाओ, और उस आयशा को बचाने का मेरा मिशन है. अब आयशा सेव करके कुछ ऐसा बनाओ कि कोई बच्ची अब आत्महत्या ना करे किसी देश पीड़ित से, या उसके शौहर के पीड़ित से, या किसी भी वजह से. शादी होने के बाद उसको सारी परेशानियां शुरू होती है. हर बाप अपनी बेटी को बड़े नाजो प्यार से पालता है. मेरी बेटी को भी मैंने बहुत नाजो प्यार से पाला था. आयशा मेरी बेटी ही नहीं, मेरे ख्वाबों की ताबीर थी. मुफलिसी भी मैंने उसे शहजादों की तरह पाली थी. और मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती थी, उसके सहेलियों को, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे पापा है. जब भी उससे कुछ ऐसी बात होती उसकी मम्मी को नहीं, मुझे कहती थी. आज मैं उसको, मुझे नींद नहीं आती, नींद की गोली लेता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती है. और अब ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी मुझे कह रही है कि पापा दूसरी बेटियों को बचा लो. तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सब एक बनो, कुछ ऐसा कानून बनाओ. सरकार से भी मेरी अपील है, बड़े बड़े एनजीओ, धर्म गुरु, सबसे. देखो कोई भी इंसान पैदा होता है तो क्या उसके माथे पे लिखा होता है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, लिखा होता है? बताओ मुझे कोई.
एक हिंदू धर्म का बच्चा मुसलमान को दे दो, वो बड़ा होगा तो मुसलमान बन जाएगा, और मुसलमान का बच्चा हिंदू को दे दो, चाहे किसी भी मजहब में दे दो, उस मजहब में उसकी परवरिश होगी ना, उस मजहब को वो इंसान कहलाएगा। ऊपर वाला तो इंसान ही पैदा करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम बनाते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। समझने की बात है यार, समझो, हिंदू मुसलमान छोड़ो, बेटियां बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने बेटी बचाई भी है, मैंने बेटी पढ़ाई भी है, लेकिन ऐसे मोड़ आ गए जहाँ मैं मजबूर हो गया, कुछ कर नहीं पाया। उस कमीने इसके शौहर ने पता नहीं क्या बात की, और आज भी मेरी जो बड़ी बेटी है उसको माइंड स्ट्रोक हो गया था, 3 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही है वो। 3 दिन तक हमारा घर परेशान हो गया। 40 से 35 हज़ार रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ उसके पीछे। उसके सर के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं सारे नॉर्मल रिपोर्ट आ रहे। डॉक्टर कह रहे इसने डिप्रेशन में है, इतने डिप्रेशन ले लिया, इसको डिप्रेशन से दूर रखो। और क्या बताऊं मैं अब आपको, उसके खुद के 3 बेटियां हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है उसके 3 लड़कियां हैं, और 3 लड़कियों को भी बेटी बचाओ में चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे बेटी पढ़ाएंगे भी। लेकिन आगे जो करना है वो बड़ी बड़ी यूनियन को करना है, सरकार को करना है। सब धर्म के लोग मिलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी कहीं भी ज़रूरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। अब किसी भी आयशा को मरने मत दो। सब मजहब की बेटी मेरी आयशा है। मेरी हाथ जोड़ के निवंती है, सब जन एक हो, सब एक करो, और इस मुहिम को डिबेट मत दो। डिबेट नहीं, अब मुझे बहुत हो गया डिबेट। जब भी मामला बनता है, मीडिया तो अपना पूरा रोल निभा रही है, चप्पे चप्पे की खबर ला के मीडिया देती है। मैं मीडिया पे आरोप नहीं लगाता, मीडिया पे मुझे गर्व है। मैं पहले भी कभी सुनता था टीवी, तो मैं देखता था यार मीडिया कितना काम करती है, लेकिन कौन क्या करता है? कोई कुछ नहीं करता। मीडिया तो अपना रोल निभा रही है, लेकिन ये समाज ये कैसा है कुछ समझ में नहीं आता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक बनो, बेटियों को बचाओ। आयशा इस नाम से कुछ ऐसा बनाओ कि बेटी बचने के लिए वो ऐसा कुछ संदर्भित करो, हर धर्म के लोग मिल के करो, हर बेटी को बचाओ। हाथ जोड़ के मैं निमंत्रित करता हूँ, ये करो। हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार। ચોક્કસ લિયાકતભાઈ, જે રીતે આપે કહ્યું કે બેટી બચાવીને બેટીને ભણાવી પણ દીધી, પરંતુ આપણો આ સમાજ જ બેટીને જીવવા નથી દેતો। એ લગ્ન કરીને પણ જાય છે તો પણ એને પરેશાની ભોગવવી પડે છે। આપણી સાથે આમિર ખાન પણ જોડાઈ ગયા છે, અને તેઓ આયશાના ભાઈ હતા, અને કહેવાય કે પરિવારમાં સૌથી નજીક કોઈ હોય બહેનની તો એનો ભાઈ જ હોય છે, જે નાનીથી મોટી થાય ત્યાં સુધીની તમામ તેની દેખરેખ કરતો હોય છે। અને આપ આમિર ખાન, અત્યારે આયશાની જે પરિસ્થિતિ થઈ હતી છેલ્લે સુધી, એની ક્યારે એણે તમને જાણકારી આપી હતી? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं होती। मुझे फ़ोन आया था पापा का कि सोनू रिवर फ्रंट पे गई है और फटाफट दौड़ो, तो मैं वहाँ दौड़ कर गया जब तक उसने ये काम कर लिया। और सुबह मेरे से हंस मिल के बातचीत कर कर वो घर से निकली, पर उस नालायक ने क्या पता क्या बोला कि मेरी बहन आज हमारे बीच में नहीं रही। સાથે જ આપણી સાથે ઝફર ખાન પણ જોડાઈ ગયા છે, જે આયશાના વકીલ છે। જે રીતે અત્યારે આરિફની ધરપકડ તો કરી લેવામાં આવી છે, અને તેની તમામ જે પૂછપરછ છે તે પણ થઈ રહી છે। શું લાગે છે આપણને, કેવી રીતે તેના ઉપર કાર્યવાહી થશે, અને અત્યારે શું અપડેટ છે એ આખા મુદ્દાને લઈને? હાલમાં આરિફ સેન્ટ્રલ જેલમાં છે અને આયો તપાસ કરી રહ્યા છે। જ્યારે પણ આરિફ નામદાર કોર્ટમાં જામીન અરજી મૂકશે ત્યારે અમે વિવિધ પ્રશ્નો હાજર થઈને એનો વિરોધ કરીશું અને એને જામીન રદ કરાવીશું। ચોક્કસથી। તો આપણે આ ચર્ચાને આગળ પણ વધારીશું, અને એક આશા સાથે આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું કે આવી બીજી કોઈ આયશા આપણા દેશમાંથી તો ન જ સામે આવે। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं।
मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफ़ी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। તો આપણે જોઈએ છીએ કે હસતા હસતા જે મોતને વાલું કરી રહી છે અને હસતા હસતા જે કહી રહી છે કે મને યાદ રાખજો, પણ સાથે સાથે એવું પણ કહી ગઈ કે મારી શું ભૂલ હતી। અને કદાચ એ જ વાંધો છે કે દેશમાં જેટલી પણ મહિલાઓ યા તો આત્મહત્યા કરે છે તેઓને એવું જ લાગે છે કે ભૂલ હંમેશા તેમની જ હોય છે, અન્ય કોઈની ભૂલ હોતી જ નથી। પરંતુ લિયાકતજી, જે રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે તેનો પતિ જ તેના ઉપર શંકા કરતો હતો અને કદાચ આ શંકાનું સમાધાન કોઈ છે જ નહીં, અને આ જ શંકાના કારણે રોજે રોજ અનેક આવી આયશાઓ મોતને ભેટી રહી છે। मैडम, पहले जो दहेज की मांगने का केस था बहुत उछला बहुत है और इसमें भी है, लेकिन एक नया शैतान अब शुरू हो गया है हमारे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, जिसे ये मोबाइल कहते हैं। ये मोबाइल, लड़की जब शादी करके घर जाती है ससुराल पहली बात, तो उसका शौहर, उसका पति किसी और लड़की से चैटिंग करता है, वीडियो कॉलिंग पे बात करता है, और वो लड़की नई नई शादी करेली होती है तो उसके माँ बाप को बताती है कि तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है। तो माँ बाप क्या जवाब देते हैं लड़के के माँ बाप, ये तो सब करते हैं, इसमें तूने तो रूबरू देखा तो नहीं उसे, वो लड़की को मिलते हुए रूबरू देखा है क्या? तो बोले नहीं। तो बोले तो सभी करते हैं, इसको बात को इतना नहीं लेना चाहिए। फिर लड़की अपने माँ बाप को बताती, माँ बाप का भी वही जवाब होता है। तो उसके अंदर उस जो लड़की नई नई शादी करके गई है उसके सामने जब उसका पति किसी और से चैटिंग कर रहा है, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है, तो आप खुद मैडम एक औरत है, समझिए अगर आपके सामने ऐसा हो आपके दिल में क्या गुजरेगी, आप फिर कहाँ जाएगी, किसको बताएगी? सास ससुर को बता दिया, माँ बाप को बता दिया, दोस्तों को बता दिया, कोई उसके फेवर में नहीं आ रहा है, तो फिर वो लड़की तो घुट घुट के मरेगी। दहेज की तो बात है ही है, लेकिन ये एक नई चीज और हो गई है, इसमें कई लड़कियां मर रही है, क्योंकि उसको तो अगर कोर्ट में भी जाती है तो बोले रूबरू देखा तूने। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ये बच्चियां मरेगी नहीं तो क्या करेगी फिर? उसकी तो सुनने वाला कोई नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। इसको रोको, इसको भी सरकार से मैं अपील करता हूँ इस बारे में भी कुछ सोचे, और कभी एफआरआई होती है तो उसका कदम સરકાર અને જે રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે સુપ્રીમ કોર્ટે બે જ વર્ષમાં અનેક એવા કાયદાઓ પણ બહાર કાઢ્યા છે કે જેનાથી સ્ત્રીઓ પર થતા અત્યાચાર અટકે, સ્ત્રી સશક્તિકરણ વધે। પરંતુ આમિર ખાન, જે રીતે આયશા, આપણે અત્યારે પણ વિડીયો જોયો, કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે મરવા જતું હોય ને ત્યારે પણ એના મોઢા પર જો હસી હોય તો એ કહી જાય છે કે એ વ્યક્તિ કેટલું ખુશ મિજાજી હશે, અને આવા ખુશ મિજાજી આયશાએ પણ આ રીતે મોતને વહાલું કરવું પડ્યું। जी मैम, ये मेरी जो बहन है वो बिल्कुल खुशमिजाज थी, हमेशा हंसती रहती थी, सबसे बातचीत करना, कोई भी आएगा उसको गले लगाना, कभी भी उसने ऐसा कभी कोई ऐसा कदम नहीं या कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि किसी को ठेस पहुंचे। ये जो आरिफ है उसे क्या मैं कहूँ, उसने क्या पता क्या बोल दिया मेरी बहन को। आज वो हमारे बीच नहीं रही, पर कोर्ट, न्यायालय, हमारी गुजरात सरकार और हमारी मीडिया जो कदम उठा रही है उसको कड़क से कड़क सजा दे, और यही मैं अपील करना चाहता हूँ। ચોક્કસથી આપ તમામ અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપનો તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો છેલ્લે છેલ્લે એ શબ્દો કહી ગઈ કે ક્યારેય મને ઇન્સાનનું મોઢું ના બતાવતા, કારણ કે એ એટલી દુઃખી હતી, એટલી એ વિકટ પરિસ્થિતિમાં હતી અને છતાં પણ હસતા હસતા મોતને વાલું કર્યું। આ આયશા હતી, પરંતુ આવી તો અનેક આયશા આપણા દેશમાં છે જે રોજે રોજ અનેક એવા મુદ્દાઓને લઈને, અનેક એવા ત્રાસને લઈને મોતને વાલું કરી રહી છે, અને બસ એક જ આશા છે કે આવી આયશા હવે ના આવે। અને એક જ વાત કહેવાની એ છે કે આપણા પરિવારમાં ક્યારે પણ કોઈ સમસ્યા હોય તો એનું નિરાકરણ હોય છે, અને આપણી જિંદગી એટલી સરળ નથી, એટલી સામાન્ય નથી કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિના કારણે આપણે મોતને વહાલું કરવું પડે। બાકી તો આપણે તમામ લોકો જાણીએ છીએ કે નારી जीवन की यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी है, પણ હવે આ પાણી સુકાવાનું છે અને ખુશ રહેવાનું છે। મહિલા દિવસ નિમિત્તે બસ એક આ જ સંદેશ કે તમામ મહિલાઓ હંમેશા ખુશ રહે।